A warm welcome to Festival City AGM. We will officially be starting the meeting the meeting time was 11 o'clock. However, since the quorum is not complete, we are deferring it by half an hour and we will officially start it at 11:30. However, with all due respect and we have a guest speaker with us, Colonel Sadana. So he has to leave at 11:30. So I will request him to say a few words for us. And he has some very interesting pieces of information which will be an eye-opener for all of us. So we'll drive everybody's attention. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. I am Commander Rajiv Sadana, retired from the Navy, and I got stuck in a project called AMR Infrastructures Limited, and we have 3,403 investors, and but we, compared to your case, we are a little. We were on the right track, but our association got hijacked by a gentleman called Mr. Neeraj Chopra. So I don't even feel like using the word Mr. in front of him, because he's been a broker for these builders, from 2005 onwards. He is not an investor in any project, but he comes on behalf of the builders, because all his life he's been getting paid by the builders 15 to 18% commission to sell the projects. He enters the station showing very, his bona fide, my sister has a property, my brother has a property. I don't know how many sisters he has, if he has any also. But he's a broker. So they take you in a different direction. All their actions are to protect the builder and take the investors for a second joyride. उनसे पैसे दोबारा निकालो, सर ये नहीं बना, दूसरा बिल्डर लिया, we'll make it. So that track is not to be taken. Our FIR, our complaint was lodged in March 2015. December 2015, the FIR was lodged. August 2018, 3 of our directors and shareholders went to Tihar jail, and I fought it out for 1 full year. I didn't do any work. I used to go to all the courts, make sure that these guys don't get bail. Finally, they got bail for 30 crores, which is in the amount deposited in Delhi High Court. So, and now I'm in the process of getting 4 more directors arrested, so that we have at least 70 crores money in our accounts, so that this money is utilized to complete our project. We are not going to pay anything more. You all have already paid. Somebody has paid 90%, somebody has paid 100%. So people have already paid. Going for a second round of payments for no right or reason. First step, tell us where did our money go. So getting to know, as I understood in the last 15 minutes, as I understand, you do not know how much money has also come into your account and how much has got siphoned off. So you have to take all the 3 routes. RERA is a very toothless kind of. RERA, we filed 15 cases in RERA court also. RERA is a very toothless kind of organization. So 2 places where one, they get punished and they pay out money is through EOW. Second is to go to NCLT. NCLT has to be taken because then there is an independent guy who gets appointed as the IRP, the independent interim resolution professional. In our case, he got appointed in May 2018. That is why we could get the whole thing out. How many investors are there? How much money came in, and where did that money go? Why is the project in this state today? हमने आपको पैसा दिया बनाने के लिए. So where did the money go? Project भी नहीं बना, पैसा भी कहाँ है वो भी नहीं बताएगा. Builder will not tell you anything. So the people who can get everything out from the builder is the EOW. Now which EOW to go? Noida or Delhi? We are 531 investors who complained in Delhi EOW. Delhi EOW versus UP, that is the Noida EOW, which is better. I would suggest you going for Noida EOW, because Noida EOW also puts the gangster in the Gunda Act. So the builder cannot come out for 7 years. That is the reason, whereas EOW Delhi is far more lenient and prone to
bribery in a way. I would say it openly. But yes, and it's not easy to for this takes a sustained effort to go and get your FIR done. But it is not a difficult thing. It's not Noida UW is not very far from here. Another thing to note is that please do not club your UW FIR. They give you one FIR number 173 or 2050 or now 2020. So complainant is the gentleman, and rest of you will all become witnesses. So there is a High Court order, and that only 3 people per FIR number. You cannot have more than 3. His grievance is different, his grievance is different, his grievance is different. So how can a judge listen to your 250 people into one FIR? The reason, because your grievance, everybody, even if a husband and wife both have separate MOUs, both are separate cases. There is a transaction between you and the company. So make your EOW complaints, 3 per person, get your FIR numbers. Remember that this FIR number will never get squashed. If you are 250 or say divided by 3 is the number of FIRs you will have. The builder will cry. He will spend the rest of his life getting these FIRs squashed from till the Delhi High Court, till the time your grievance is not met with, is not been cleared. So 3 per people. We didn't know it that time. So we ended up with one FIR number and 530 complainants there. 30 crores is coming. We'll get 40 more crores. The money that we have already paid has to be utilized to complete the project. It is not that you will take away my money, not give me my project, my shop also or my property also, and not return my money. It's only that is what is the grievance in going to UW. Sir, उन्होंने मेरे पैसे ले लिए, ना मुझे सामान दे रहे हैं, ना मेरे पैसे वापस कर रहे हैं. एक चीज कीजिए, ठीक है? That is the grievance. उससे ज्यादा कोई grievance है ही नहीं. EOW की कंप्लेंट बनाने के लिए कोई पुलिस की कोई जरूरत नहीं. You don't need lawyers and all to make a. It's a plain to the DCP EOW सिंपल कंप्लेंट बनाइए. FIR 3 लोग एक साथ क्लब करके कि हमें एक FIR नंबर दो. एक दिन जाएंगे, 2 दिन जाएंगे, 3 दिन जाएंगे. DCP EOW will give it. That is his job. There is no need to go to the local police stations because local police stations are not equipped to handle these kind of offences. So EOW complaint, EOW FIR, if you're 250, it is not the association on behalf of the association. Whenever associations get made, the builder always finds a way to take care of the interests of the top 3. हमारे association में भी हुआ. I am not a member of any association. I fight my own battle. But I know what happens in the association. He just generally the builder tries to take care of the first 3, 4, 5 people. जो 4-5 चौधरी हैं उनको देख लो. बाकी rest of them go fat. So please get your every investor should have his individual or maximum 3 per person should have his EOW FIR because in every case all the directors of the company will have to come and get individual bail. So EOW वाला काम आपको जरूरी कराना है. 4 धाम है EOW, NCLT, तीसरा रेरा और चौथा है कंज्यूमर कोर्ट. कंज्यूमर कोर्ट इज अगेन अ जीरो. नेशनल कंज्यूमर जो NCDRC है उसमें 1 करोड़ से ऊपर यू हैव टू बी द अमाउंट. आपकी इन्वेस्टमेंट हो, आप 1 करोड़ 3-4 लोग करके करते हैं. लेकिन NCDRC में 1 साल में एक डेट पड़ती है. जनवरी में पड़ेगी तो अगले जनवरी में पड़ेगी. सो कंज्यूमर कोर्ट इज आउट. 240 of us went to NCDRC, no progress, nothing is going to move there. RERA we found, हमने 15 days डाले थे. RERA we found is not effective at all. It has got no teeth. अगर जो ऑर्डर ले भी आओगे तो कागज टुकड़ा, nothing will move on ground. Third comes NCLT and EOW. EOW का मैंने आपको ऑलरेडी So EOW का मैंने आपको रिक्वेस्ट किया है. You have to have your FIR number. Individual नहीं तो 3 per person. आयोग के लिए काम है, लेकिन जो बातें करते हैं वो तभी बता करेंगे. आप EOW में कंप्लीट नहीं करेंगे तो EOW अपने आप कुछ नहीं करेंगे.
EOW में पिछले ग्रीवियंस बड़ा 4 स्टेप्स हैं। आपने बोला इन्होंने मेरे पैसे लिए हैं, मेरे को सामान नहीं दे रहे हैं, so you take a complaint to the EOW along with all your documents. Last comes NCLT. अब ये NCLT, what is this new code all about? EOW से सजा मिलती है, NCLT से पैसे निकलते हैं। NCLT से क्या है? The purpose of NCLT is National Company Law Tribunal. This is इस कंपनी ने अगेन द सेम ग्रीवियंस कि इन्होंने मेरे पैसे ले लिए, सामान नहीं दे रहे हैं। तो व्हाट गए, किसी ने क्लब नहीं किया केस किसी के साथ भी। हमने लाखों रुपए दे दिए हैं, अब हम छोटे से पैसे के लिए नहीं जाना चाहते हैं। कभी भी अगर आप केस क्लब करके जाते हैं, मान लो ये 2-3 या 2 लोग जेंटलमैन भी NCLT अप्रोच करते हैं कि वहां पर हमारे मेन रिक्वेस्ट क्या है कि आपने हमारे पैसे ले लिए हैं, इस कंपनी ने हमारे पैसे ले लिए हैं, ना हमें जगह दे रही है, ना हमें पैसे दे रही है। तो वो प्रूव करता है पहले कि इन्होंने आपके पैसे देने हैं, ठीक है, आपने बाइट से पैसे दिए हैं, चेक से पैसे दिए, वो अमाउंट प्रूव हो जाता है। तो आपकी रिक्वेस्ट NCLT में क्या है? NCLT में ये है कि जज साहब मेरे पैसे वापस दे दिए जाएं, और यदि कंपनी के पास पैसे नहीं है तो कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जाए, या इसके अंदर रेजोल्यूशन प्लान बनाया जाए कि दूसरा कोई आके इसको बनाए। इसको पुराना किला तो बनाएंगे नहीं, इस प्रोजेक्ट को कोई तो कंप्लीट करेगा, लेकिन ये नहीं कर सकता है, इसके हाथ से लिया जाए। सो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट शुरू की जाती है। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है जो ITC इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है वो सिर्फ उसको लिक्विडेट कर देगा जो भी सरकार से IRP प्रोफेशनल अपॉइंट होगा, ऐसा नहीं है। रीजन क्या है? वो इसको रिज्यूमिनेट करेगा क्योंकि इतने सारे लोगों का पैसा फंसा हुआ है, लेकिन वो पहले सर्च तो निकालेगा कि पैसा आया कितने लोगों का, IRP या फीस दे रहे हैं, कोर्ट से अपॉइंटेड है, NCLT कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, तो वो कहता है पहले पता तो चले। एक इसलिए जो इस समय तो 99% चीजें आपको पता ही नहीं है। पहले तो पता नहीं इन्वेस्टर कितने हैं, कितनों का पैसा आया है, कितना आया है, खर्च कहाँ हुआ है। तो हमारा फॉरेंसिक ऑडिट हुआ, हमारी जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं सारी निकली, एक वाइट पेपर 700 पेजेस का पब्लिश हुआ, इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन हुई प्रॉपर्टीज की। ये सब हमारा कोर्ट मॉनिटर्ड काम बिल्कुल ठीक ठाक से चल रहा था। उसके बाद जो IRP था, 1 महीने के बाद IRP से RP बनाया जाता है। प्रॉब्लम हमारी कहाँ हुई? ये एक मिस्टर नीरज चोपड़ा जी पहुंच गए वहां पे, मेरे को आर्य समाज मंदिर सामने ही है, वहीं पे हमारे एसोसिएशन की मीटिंग हुई, हमें बुलाया, बोला आइए। मैं 15 मिनट में हमने समझ गया, हमने कहा सर आप हैं कौन, पहले ये बताइए। नीरज चोपड़ा जी ने कि मैं तो समाज सेवा कर रहा हूँ। मैंने कहा समाज सेवा कर रहे हैं तो किसी NGO में जाके कीजिए, यहाँ पे हमारे पैसे फंसे हुए जिंदगी भर के, आप बताइए हैं कौन। तो उनके बारे में देन ही केम अप विद दिस कि मेरे कुछ बहन हैं, उनके लिए मैं लड़ रहा हूँ। तो मैंने कहा बहन के पति लड़ेंगे जिनके पैसे हैं। आप हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 700 इन्वेस्टर्स गॉट टेकन फॉर अ राइड, क्योंकि हमें छोटे छोटे इलेक्शन हम लड़ते थे, फौज में तो कोई हमको पॉलिटिक्स नहीं जानते थे। इन्होंने हिंदी इंग्लिश में टेलीग्राम में व्हाट्सएप ग्रुप पे हमसे सारा डाटा लेके पहले हमारे IRP को चेंज करवाने की कोशिश की, क्योंकि हमारा IRP बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से काम कर रहा था, हमारे बिल्डर भी जेल में थे, सब कुछ ठीक से चल रहा था। जब IRP नहीं हटा सके, कोर्ट का ऑर्डर हो गया IRP to RP बन जाइए, तो भी ठीक चलता रहा। उसके बाद जब हमारी वोटिंग होनी थी कि अब नया बिल्डर आना है, हमारी COC बन गई, 1.5 साल पूरा वो चला। इन्वेस्टर्स जब आप 700 लोगों को एक साथ, 700 लोग सोचते नहीं, अगर जब वो एसोसिएशन बन जाती है ना, तो 700 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ही, 3 भी नहीं, 1 या 2 ही सोचते हैं। 700 भेड़ चाल की तरह पीछे पीछे चलते रहते हैं, भरोसा करके कि हमने इनको अपना एसोसिएशन प्रेसिडेंट बनाया, ये हमारे लिए ठीक ही सोच रहे होंगे। ऐसा नहीं है सर। अगर वो एसोसिएशन प्रेसिडेंट और वो 2-3 जो लोग हैं किसी तीसरे आदमी के इन्फ्लुएंस में आ गए, तो वो 700 के 700 बर्बाद होंगे। हमारे केस में 2200 इन्वेस्टर्स का, 700 इन्वेस्टर्स ने यस नो 3 क्वेश्चन थे, क्या आपको बिल्डर नया वाला ठीक है, ये खराब है, यस नो करके वो गए, SMS गए, टेलीग्राम पे गए, व्हाट्सएप पे गए, ईमेल पे गए,
और एक वो वाला बिल्डर आ गया जो 7 लाख रुपए के लिए खुद इंसॉल्वेंसी में हो गया। तो इसलिए जो ये मिस्टर नीरज चोपड़ा ने जो हमारे यहाँ एसोसिएशन में गंद मचाया है ना, और उसके बाद वो नजर नहीं आएंगे क्योंकि उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। ही इज अ थर्ड पार्टी हु हैज जस्ट वॉक्ड इन fooling the 3 people sitting here and in the market fooled everybody. पहले का पैसा कहां गया हमारा 543 करोड़, किसी को नहीं पता है। 200 करोड़ कैश में है, वो नहीं पता है। हमारे पूरे इन्वेस्टर कहां है, किसी को नहीं पता है। लेकिन वो एक अलग सी डायरेक्शन में लेकर नीरज चोपड़ा उठा के हमारे एसोसिएशन के जो 3 प्रेसिडेंट सेक्रेटरी होते, नहीं हम तो यहाँ बनाएंगे, ये आएगा। अरे जिसने हमारे पैसे लिए हम उससे बनवाएंगे ना। हमने 30 करोड़ हाईकोर्ट में जमा करा दिए बिल्डर के, 1 साल जेल में भी रखा, 40 करोड़ और जमा कराएंगे बाकी डायरेक्टर से। हम दोबारा क्यों पैसे दें? सो प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट है, इफ यू डू नॉट वांट टू, वी हैव फॉलन इनटू द ट्रैप, वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट। हालांकि हम विल नॉट लेट इट हैपन, बट द पॉइंट इज इट इज अननेसेसरी। डू नॉट लेट एनीबडी एंटर दिस प्लेस who is not affected, जिसके पैसे ही नहीं है, जो खुद ब्रोकर है। वो पहले 18% कहते हैं, एक थोड़ी ना वो 10 बिल्डर्स साथ काम कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज जो यहाँ पर है वो बोनाफाइड होना चाहिए। या तो अगर फादर की प्रॉपर्टी तो उनका बेटा हो, हस्बैंड की है तो वाइफ हो, लेकिन पहले क्रीडेंशियल्स प्लीज चेक कीजिए आपके बीच में कौन है। ये इतने सिंपल लोग नहीं है। इन ब्रोकर्स की वजह से आप पहले फंसे थे। 99% ब्रोकर ने तो अपनी कमीशन नहीं चला गया, फंसे हुए आज आप हैं। आज जिसने ब्रोकर से लिया था, फोन किया था, देखो आपका ब्रोकर फोन भी उठाता है कि नहीं। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज बी वेरी 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 ऑफ दिस एंड केयरफुल ऑफ दिस मैन कॉल्ड नीरज चोपड़ा। ही हैज डन सो मच ऑफ हार्म इन अ मंथ और 2। उसने जो हमारे यहाँ डैमेज कर दिया ना, कि हम पहले आसमान से गिरे खजूर में अटके वाली बात हो गई है। क्योंकि एक बार वोटिंग हो जाएगी एनसीएलटी के थ्रू, देन दैट थिंग इज फाइनल। कोर्ट विल जस्ट गो अहेड विद दैट। अब हम कहते हैं एक बिल्डर से छूटे, अब दूसरे के साथ फंस जाएंगे। हम फाइट कर रहे हैं कि क्यों केपेबल आदमी है, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। व्हाट आई केम हियर टू रिक्वेस्ट यू ऑल इज प्लीज बी वेरी ऑफ द जेंटलमैन कॉल्ड नीरज चोपड़ा। बाकी मैंने आपको 4 बता दिया, हमारा एक्सपीरियंस है। कंज्यूमर कोर्ट कुछ नहीं हो रहा है, रेरा 0। थर्ड इज रेरा में आपके यहाँ हुआ है क्योंकि आप डिरजिस्टर करा पाए। हमारे केस में हम एनसीएलटी में वी आर द फर्स्ट केस इन 2018, 10th May 2018 को वी वर द फर्स्ट बिल्डर हु वेंट अंडर। लेकिन आप ईओडब्ल्यू यू ऑल हैव टू परस्यू 3 पर ग्रुप। रीजन भी मैंने आपको कह दिया कि जब तक जो आपके पैसे लेके भागा है, आप पहले उसको पकड़िए। मैं आपका ये बाइक उठा के लेके भाग रहा हूँ, आप मुझे गेट पे गार्ड को बोलिए ये लेके भाग रहा है, इसको भी रिकवर करेंगे, मुझे भी पकड़ेंगे, राइट। ये तो नहीं है कि मैं ये लेके भाग रहा हूँ और आप कहते हैं किसी दूसरे कोर्ट जाएंगे, देखो राजीव हमारा लेके भाग गया। अरे जब आपको पता है आपका पैसा किसने लिया, उसको पकड़िए ना। आप पहले उसको तो पकड़िए। तो ईओडब्ल्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट नॉट मोर देन 3 per person. That is one. Second is NCLT का ऑप्शन बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, NCLT opened up. You must support NCLT. NCLT will appoint a court monitored RP resolution professional who is the equitable liquidator. He will get you the right guy. आप लोग you are not capable of getting a new guy. ये बिल्डर अच्छा बना देगा, किसी ना किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट होना ही होना है उसमें। आप दूसरा बिल्डर ले आएंगे, ऐसे कैसे डिसाइड कर सकते हैं इसको ले आएंगे ये बना देगा। हम अपना घर खुद ही बना सकते थे, तभी तो कहते हमने किसी को पैसे दिए बनाने को। आपके सोचते कि आप, अगर हमारे यहाँ पे भी बातें हुई हैं, ये नीरज चोपड़ा के ड्रिवन था कि नहीं इन्वेस्टर्स बना लेंगे। इन्वेस्टर अपना घर नहीं बना सकते, घर में सफेदी नहीं करा सकते। आपके सोचते इतना बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। सो इन्वेस्टर एसोसिएशन कैन नॉट डू इट, इट इज नॉट योर जॉब। That is my request, and please don't get if anything else is required or any question is there, I'm ready to answer because I have another 5 minutes. Please ask me. Please, sir. Case in EOW Delhi. Yes, sir. And another case is required to be filed in EOW to Noida, as you recommended that. Yes, sir. Beneficial.
will there be any clash? No. Or one has to cancel that? No, no. Get into this? How does it happen? You don't have an FIR right now I anywhere. don't know. We have it in EOW Delhi. What is the FIR number? I don't remember it offhand, but most of the people have done it. No, no. You have what filed complaints. You have not got an FIR. सर देखो 3 स्टेज होती है. मैं आपका ये मैं बता रहा हूँ, इसमें हमने दोनों चीजें करी है. Like we have also done like whatever you are talking about today. Some people have done most of it and gone ahead also. What you are saying is pertinent. Actually pertinent. FIR नंबर क्या है सर? ये बताओ. मैंने दो चीजें, एक FIR करी है और एक EOW है. EOW नहीं होनी है. नहीं, दोनों वैसे भी कर दी थी हमने. वैसे करके वो ट्रांसफर EOW में कर देते केस. दिस इज द फाइनेंशियल व्हाइट कॉलर क्राइम ना सर. इट गेट्स ट्रांसफर टू EOW. नॉर्मल It would be club. क्लब नहीं सर. मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप कह रहे हैं किया है तो मैं इतना सर पूछ रहा हूँ FIR नंबर क्या है. इससे पूछ लीजिए सर. सॉरी सर. वो इंडिविजुअल वाली का याद है, इसका EOW जो कॉमन थी उसका नहीं याद है. नहीं सर, आपकी हुई नहीं है. मैं बता दूं क्यों. अगर हुई होती तो आपको पता होता. अभी तक उसके ऊपर वो अरेस्ट हो चुका होता बिल्डर. रीजन क्या है? FIR और आप लोगों ने बड़ा अंडरस्टैंड कंप्लेंट की है. अभी फर्क क्या है? कंप्लेंट क्या है? मैं आपकी घड़ी लेके भाग गया. आप थाने गए, बोला राजीव ने मेरी घड़ी ले ली है. ठीक है, आपके कहने से मैंने घड़ी नहीं ले ली है. फिर पुलिस तहकीकात करती है. 6-8 महीने लगाएगी कि राजीव ने आपकी घड़ी ली है नहीं ली है. अगर उसको लगा प्रूफ है कि इसने घड़ी ली है, तब वो FIR दर्ज करेंगे. FIR दर्ज करने के बाद मुझे अरेस्ट करेंगे. उसके बाद चार्जशीट फाइल करेंगे कोर्ट में. तो आप लोगों की FIR नहीं हुई है. आप लोगों ने कंप्लेंट दी है. कंप्लेंट देने से कुछ नहीं हो रहा. Complaint to be converted into FIR is not also very easy. I know. It is not very difficult also. It is because EOW is authorized to do this. So normal थाने में आपको 50,000 रुपए मांग लेते हैं कि FIR कराने को. So what I can make, if you are sure कि आपकी FIR हुई है, which I am not sure. अगर हुई है तो आप FIR नंबर बताइए. FIR नंबर के ऊपर you can have him arrested on that. You have to get a builder arrested. So the question is this: I suppose that is only a complaint. As of now, I go by that. So it's got no use, no. That is what you are trying to say. नोएडा कराने का फायदा क्या है? नोएडा में बाकी जितने बिल्डर हैं, आप हमारे टेक जोन में 9 बिल्डर हैं. एयरवेल वाले अंदर हैं, देन अर्थ वाले अंदर हैं, कॉस्मिक वाले अंदर हैं. नोएडा में क्या है? दे पुट द गैंगस्टर एंड गुंडा एंड ऑल्सो 7 साल तक बाहर नहीं निकलता वो. हाँ, दिल्ली EOW में हमारा बिल्डर निकल आया ना सर. 13 महीने में निकल आया. 30 करोड़ बेल ही पेड इन 3 आवर्स. दिल्ली में आप भागेंगे तीसरे को. आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर है, आप उसको डालिए लुक्सर जेल में, निकलेगा नहीं बाहर. क्योंकि नोएडा पुलिस इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट एस्पेक्ट बिकॉज दे ऑल्सो पुट द गैंगस्टर एक्ट. अभी क्या है? आपका ऑडिट नहीं है आपके पास. EOW आपका फोरेंसिक ऑडिट करा देगी, आपका नॉर्मल ऑडिट करा देगी. आपको पता तो चले आपका पैसा कितना है. आप 250 लोग हैं. हाउ मच मनी हैज गॉन इनटू द प्रोजेक्ट? हाउ मच हैव यू गाइस पेड ऑल योर इन्वेस्टर्स इन दिस प्रोजेक्ट? पहले वो अमाउंट तो बताओ. वो हमें अमाउंट कहां से पता चला है? हमारी चार्जशीट से पता चला है. वी हैव 14,000 पेज चार्जशीट. 14,000 पेज की चार्जशीट है सर हमारी. तो उसके अंदर आप सबके डॉक्यूमेंट लेंगे, लेकिन क्लब नहीं करना. जैसे ही 3 लोग कराओ, उसका थोड़ा हमें नया FIR नंबर. तो दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है. हमारे केस में हमें 2 साल पहले पता नहीं था, क्योंकि वी हैड नेवर सीन अ कोर्ट बिफोर ऑल दिस. तो जैसे ही वो अरेस्ट हुआ, 530 कंप्लेंट्स हो गए. ही वेंट एंड टुक अ स्टे कि द FIR शुड नॉट बी सेग्रीगेटेड. तो आप उस स्टेज पे पहुंचो ही क्योंकि पहले ही लोग, जब आपको मैं बता रहा हूँ, आई कैन सेट द ऑर्डर कि आप 3 लोग जाए, 3 लोग क्लब के, बोलो मेरे को मेरा FIR नंबर दे. EOW देगा ही देगा. पहले कंप्लेंट ले, चक्कर लगेंगे सर. लेकिन अगर 26 साल ये पैसा कमाने में लगा दिए तो कुछ समय इस पैसा को रिकवर करने में लगाना ही पड़ेगा. या तो प्रोजेक्ट लो, अब या तो अपनी दुकान लो, या अपने पैसे वापस लो. चैप्टर क्लोज है सर. Sir, one question I have. Yeah. So, of course, getting on to the details, how did you get rid of Neeraj Chopra in your project? नीरज चोपड़ा, after the damage was done, voting हो गई. He got us voted in favor of the Trish developer. Oh, he did. He could do that. Yeah, he could do that because मैं वो हिंदी, इंग्लिश और हमारे एसोसिएशन के जो 3 एसोसिएशन मेंबर थे सब 75+. तो वो कोई हिल नहीं सकते थे. ये मालवीय नगर से सर मैं NCLT गया. मैं आता हूँ RS वाज मंदिर. मैं तो नहीं जाता था. I never, we must have had 20 meetings of association, never went once. मैंने कहा पैसे मेरे को निकालना पड़ेगा ना. सब वाई विल somebody else work for me?
तो वो, लेकिन मैंने आपको जो हर्ड मेंटालिटी है ना, भेड़ चाल है कि 3 लोगों ने बोल दिया, हमने इनको बना दिया है, मीटिंग हो गई, समोसा चाय ताली बजाओ एंड मीटिंग मिनट्स बनाए और उसको किसी फाइल में दबा दो, चलो, देयर इज नो फर्दर एक्शन ना, देयर इज नो फर्दर एक्शन. सो दिस गाय डैमेज्ड इट बिकॉज ही गॉट अस वोटेड इन फेवर ऑफ कृष, जो खुद 7 लाख के लिए इंसॉल्वेंसी में चला गया, दो ही लेटर पेड. But the point is, there is always a nexus. It is all these are activities to safeguard the builder. वो जिंदगी भर उसी बिल्डर से तो पैसे खाता आ रहा है. True, very true. 18%, 15%, 18% commission per lakh. He's been eating all his life. That is his primary job. So he's been doing that, and now he's कभी उसके लिए AMR के लिए काम करे, चाहे वसीम के लिए काम करे, चाहे एयरवेल के लिए काम करे या अर्थ का, वो तो 15 बिल्डर्स के यही काम है. उसकी दाल रोटी तो आप लोगों से ही चलती है. Very true. और आप उसको निकाल के रहे हो, वो तो ही हैज नो लोकल स्टैंड है उसका. तो आज अगर कोई डैमेज होता है, किसको गाली दोगे? यू विल नॉट बी एबल टू, बिकॉज ही इज नोवेयर टू बी सीन एनीमोर. Absolutely, sir. Thank you for एंड ही इज नॉट रिस्पांसिबल. उसने आपकी आंख में मिर्ची डाल के थोड़ा ना आपसे करवा रहा है. Right. We will take last 2 questions that sir has to read. श्योर सर. I am Ashok Agarwal. Sir. Based MNU. सर. And I am also founder president of Noida Entrepreneur Association, so I have tried with the association for a very long time. Sir. I'd like to have your introduction also, sir. I'm Commander Rajiv Sardana. I'm what do you say? I'm an investor in AMR Infrastructures, AMR Mall of Adventure in Greater Noida. Otherwise, I'm not any member of any association. I did make a independent, one-man investor group. I took money. People contributed because we have 3,200 investors. So You are an investor in NIST. I'm an investor in AMR Infrastructures, but we got very badly stung by a guy called नीरज चोपड़ा, जो आपके स्टेशन में आ गए हैं. तो मैं उसी के बताने के लिए आपको आया था सर. Okay, thank you. You are a special one. Thank you. I want to know, सर. the restrictions that you are telling us of